ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ بنام شہید اعظم کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. دوستو، ہر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزاروں. ہماری زندگی گزرے تو دوسروں کے لیے شاہراہ ہو. اب آئیے آپ دیکھیے وہ قرآن جو اللہ کے حبیب پر نازل ہوا، اور وہ قرآن جو ہدی للناس ہے، سبحان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. اس قرآن عظیم کو اللہ کے حبیب نے پڑھ پڑھ کر کے سنایا اور اپنی روشنی میں قرآن کے معنی اور مطالب کو لوگوں کو سمجھایا. اس قرآن سے سوال کیا جائے، قرآن تو بتا، ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس ماحول سے اور کس فکر سے اور کس تدبر سے کس شاہراہ پر لے کر کے چلیں تو ہم اپنی زندگی کو مطمئن زندگی پائیں گے اور ہم کو ہماری زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا. لیکن بجائے چہرے پر حوصلے کی علامت دیکھنے کے ہمارا چہرہ ہر دم پژمردہ دکھائی دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن تو بتا دے. تو قرآن میں رب کا بیان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. رب فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا. کیا بات ہے. میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا. اے زندگی گزارنے والے، تو ذرا دیکھ لے، تیرا منہ تو نہیں ذکر اللہ سے پھر گیا ہے، تو اپنی زندگی میں تنگی محسوس کر رہا ہے. تیرا منہ تو ذکر اللہ سے نہیں پھرا ہے، تو اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے. اگر تیرا منہ اللہ کے ذکر سے پھر گیا ہے اور اللہ کے ذکر سے تو غافل ہے تو واقعی تیری دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ قرآن بیان دے رہا ہے، یہ رب کا فرمان جاری ہو چکا ہے. روپے پیسے کی کمی تو نہیں ہے، مگر واقعی ہماری طبیعت شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، واقعی ہماری طبیعت شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوئی ہے. واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی فکر کو ذکر اللہ میں لگاتے، ہماری فکر ذکر اللہ میں نہیں ہے بلکہ فکر دنیا میں ہے. ہم اپنے منہ کو ذکر الہی کی طرف کرتے، ہمارا منہ ذکر الہی کی طرف نہیں ہے بلکہ ذکر الہی سے ہمارا منہ پھرا ہوا ہے. آؤ میں عرض کرتا چلو پیارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، انما الدنیا لہو و لعب. اس طرح سے آیت کریمہ ہے، بے شک دنیا کھیل کود ہے، دنیا ایک تماشا ہے، اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ کا منہ اگر دنیا میں لگا ہوا ہے اور کھیل کود تماشے کی طرف ہے تو واقعی آپ کی دنیاوی زندگی تنگ ہے. ذکر الہی چھوڑ کر نہ آپ دنیاوی زندگی میں اطمینان پا سکتے ہو اور نہ آپ کی دینی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا. دینی زندگی کے تعلق سے رب تو ارشاد فرماتا ہے کہ سن
जब तेरी दीनी जिंदगी जहां से शुरू होगी वहां से हम तेरी जिंदगी को बयान कर रहे हैं कि वह नहशुर हो यौमल क़यामत आमा, और क़यामत के दिन हम तुझको अंधा करके उठाएंगे। यानी यहां तेरी जिंदगी तो मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया तंग हो ही गई है, वहां तेरी जिंदगी अंधी जिंदगी होगी, वहां तेरी जिंदगी बेकार जिंदगी होगी, वहां तेरी जिंदगी की बसारत बसीरत दोनों खत्म हो चुकी होगी। इस तरह से यहां भी तेरे लिए घाटा है और वहां भी तेरे लिए घाटा है अगर तूने जिक्र इलाही से मुंह फेर लिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, जिक्र इलाही का मफहूम जरा समझते तो चलो, और सहाबा की मुकद्दस जिंदगी से समझते हुए चलो। सहाबा ने जिक्र इलाही सिर्फ क्या इसी को तस्वुर किया था कि नमाज ही जिक्र इलाही है, रोजा ही जिक्र इलाही है, ज़कात ही जिक्र इलाही है? क्या यही सब जिक्र इलाही है? आओ, एक सहाबी हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ये तरीका है कि मैं जब इबादत से फारिग होता हूं और मेरे वक्त का हिस्सा बचता है तो मैं उस वक्त में आप पर दरूद पढ़ा करता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कितना दरूद पढ़ा करूं, कितने वक्त तक? तो आका ने इरशाद फरमाया कि तुम जितना चाहो पढ़ा करो, इससे और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वार्स करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब हम ये दस्तूर बनाएंगे कि इबादत करेंगे, इबादत का आधा वक्त जो बचेगा हम आप पर दरूद पढ़ाएंगे। आका फरमाते हैं तुम्हारे लिए बेहतर है, इससे और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम इबादत करेंगे और अपने वक्त का तिहाई हिस्सा जो हमारा रहेगा वो 3 हिस्सा हम आप पर दरूद पढ़ेंगे। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब हमको इबादत करने से जितना भी वक्त मिलेगा वो सारा वक्त हम आप पर दरूद पढ़ते रहेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं तब तो तुम्हारे सारे काम बन गए, तब तो तुम्हारे सारे मकासद हासिल हो गए। पता ये चला कि जिस इबादत में रसूल की मोहब्बत नहीं है वो इबादत जिक्र इलाही है ही नहीं, जिसमें रसूल की लगन नहीं है वो जिक्र इलाही है ही नहीं, जिसमें रसूल का अदब नहीं है वो जिक्र इलाही है ही नहीं, जिसमें रसूल की चाहत नहीं है वो जिक्र इलाही है ही नहीं, जिस इबादत में रसूल का एहतराम नहीं है वो जिक्र इलाही नहीं है। वो मन आरदान जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका व नहशुर हो यौमल क़यामत आमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मजबूर होना पड़ता है कि हुसैन जैसी कुर्बानी न हमने आज तक देखी है, न कयामत तक कोई दिखा सकता है। हुसैन ने जैसा जोशो जज्बा और दीन पर इस्तिकामत का माहौल अता फरमाया है, इस तरह से दुनिया का कोई इंसान पेश नहीं कर सकता। इमाम हुसैन पर कई जिम्मेदारियां थी, इमाम हुसैन पर कई मामलात थे। इमाम हुसैन की मुक़द्दस जिंदगी को मुलाहजा कीजिए आप, तो इमाम के अंदर अबू बकर की सदाकत भी पाई जा रही है, इमाम के अंदर हजरत उमर फारूक आजम की अदालत भी पाई जा रही है, हजरत इमाम हुसैन के अंदर उस्मान गनी का सखावत भी पाया जा रहा है, हजरत इमाम के अंदर मौलाए कायनात की शुजात इबादत का जौहर भी पाया जा रहा है। अब आप जरा गौर फरमाइए कि यजीद ने जब मुतालबा किया था हुसैन अपने हाथ को मेरे हाथ में दो, इमाम अली मकाम अगर हाथ दे देते तो सदाकत का खून हो जाता, अदालत का खून हो जाता, सखावत का खून हो जाता, शुजात इबादत के जौहर का जनाजा निकल जाता। इमाम ने कितनी जिम्मेदारियों को निभाया है और इमाम ने किस तरह से निभाते हुए इस्लाम के चेहरे पर हुस्न खूबसूरती का गाजा मल करके ये साबित कर दिया है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कि 10वीं मुहर्रम के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले इमाम अली मकाम की तारीख और यजीद की तारीख मुताला की जाए तो उस वक्त से पहले तमाम बनी नौ इंसान में यजीद नाम के आदमी पाए जा रहे थे, लेकिन जब करबला की शाम आई है उधर सूरज गुरूब हुआ उधर तारीख डूब जाती है, उधर सूरज गुरूब हुआ उधर बनी नौ इंसानी के ज़हन फिक्र पर यह ताला लग जाता है कि अब दुनिया में कोई इंसान अपने किसी बच्चे का नाम यजीद नहीं
नहीं रखेगा, तो इसके घर भी बच्चा पैदा होगा, कोई यजीद नहीं रखेगा। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर डालो, ना अमेरिका में कोई यजीद नामी आदमी पाया जा रहा है, ना अफ्रीका में कोई यजीद नामी आदमी पाया जा रहा है, ना ईसाइयों में कोई यजीद नाम का पाया जा रहा है, ना यहूदियों में कोई यजीद नाम का पाया जा रहा है, ना मुशरिकों में कोई यजीद नाम का पाया जा रहा है। जो खामखाह के लिए यजीदियों की हिमायत करते हैं वो भी नहीं अपना बच्चे का नाम यजीद रखते हैं, वो भी नहीं कहते हैं कि हमारा नाम यजीद रहेगा। यही तो हुसैन की जीत है और यही यजीद की हार है। इमाम हुसैन ने उसी दिन मार दिया था यजीद को कि अब दुनिया में तेरे नाम पर कोई नाम नहीं रहेगा, और हुसैन उसी दिन जीत गए थे कि आज भी गुलाम हुसैन हैं, आज भी अहमद हुसैन हैं, आज भी मोहम्मद हुसैन हैं, आज भी फिदा हुसैन हैं के नाम पर लाखों सैकड़ों बच्चों की वलादत होती है और नाम रखा जा रहा है। यही हुसैन की जीत है, यही यजीद की मौत है। आज भी इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का काम जिंदा है, नाम जिंदा है। आज भी इमाम के नाम से फायदा उठाया जा रहा है और कयामत तक इमाम के नाम से फायदा उठाया जाएगा। हम दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान का सर्वे करके मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत इमाम आली मकाम की एक बड़ी मशहूर करामत लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। 135 बरस पहले का वाकया है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर, उस जिले में एक गांव है जिसका नाम है नूरुद्दीनपुर। आज पता नहीं उस गांव का नाम बदल गया कि वही नाम पड़ा हुआ है, इसलिए कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया और खलीलाबाद को संत कबीर नगर कर दिया, नौगढ़ को सिद्धार्थ नगर कर दिया, इस तरह से नाम बहुत जल्दी जल्दी बदले जा रहे हैं। बहरहाल नूरुद्दीनपुर गांव एक था, उस गांव में एक सैयद रहा करते थे। जब यही मुहर्रम की 10वीं तारीख आती थी तो सैयद साहब का घर फकीरों और मगतों का एक मेला लग जाता था। जरूरतमंद वहां आकर के पहुंच जाया करते थे। उनके घर सवेरे सवेरे खैरात बटती थी, कपड़े बांटे जाते थे, रुपए पैसे तकसीम किए जाते थे, खाना खिलाया जाता था। एक धूम मची रहती थी। उनके पड़ोस में एक सुनार रहता था। उस सुनार की बीवी ने एक रोज सैयद साहब की बीवी से पूछ लिया, ये तो बताइए बहन कि जब मुहर्रम की तारीख आती है तो मुख्तलिफ किस्म से लोग मुहर्रम की तारीख मनाते रहते हैं, मगर आपके घर का अंदाज दूसरा है। गरीबों को कपड़ा बांटा जाता है, फकीरों की झोलियां भरी जाती हैं, भूखों को खाने खिलाए जाते हैं, दोस्तों अहबाब की दावत की जाती है। आखिर ये अंदाज आपने क्यों बनाया है? तो बहन ने कहा, सुनो, हम इमाम आली मकाम का जब शहादत के दिन आता है तो उनको याद किया करते हैं और उनकी बारगाह में हम नजराने अकीदत पेश किया करते हैं। बहन ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन और लोग भी तो नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। कोई ढोल बजा रहा है, कोई ताशा बजा रहा है, कोई खुराफात में मुलव्विस है, कोई कुछ कह रहा है। एक तारीख में आपको बता दूं, जहां तक हमने किताबों में मुताला किया है प्यारे, ये ढोल और ताशा यजीदियों ने बजाया था। कूफा में जब सबसे पहले इमाम आली मकाम का सरे अनवर आया है तो इब्ने जियाद ने हुक्म दिया था कि बाजे बजाए जाएं, और बाजे बजाए जा रहे थे। उसके पीछे पीछे सरों को ले जाकर के घूमा जा रहा था। मैं आपकी गैरत को ललकारता हूं, ये कितने बड़े दज्जाल लोग हैं जो इस तरह से इमाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। काम तुम यजीदी कर रहे हो, मोहब्बत कदम हुसैन से भर रहे हो, काम तुम्हारा यजीदियों के ज़हन फिक्र से हो रहा है, और तुम अपनी जबान पर इमाम हुसैन की मोहब्बत की आवाज ला रहे हो। जरा अपने ज़हन फिक्र को बदलो, तुम मुसलमान हो। तुम जहां जहां चले थे शराफत तकद्दुस का परचम लहराया था। तुम जहां बैठ गए थे तो दुनिया ने देखा था ये मुसलमान बैठा हुआ है। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे थे तो दुनिया कह रही थी ये मुसलमान जा रहा है। तुम जिस मुल्क में आए थे उस मुल्क को सोने का चिड़िया बना दिया था। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आपने अपनी सकाफत और अपनी शराफत का शोहरा करवाया था और अपनी सकाफत और शराफत और जिंदगी का माहौल पेश किया था तो दूसरी कौमें कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रही थी। तुम्हारे कदमों में अपने जीवन को बिताने के लिए वो हर मोड़ पर तैयार रहा करती थी और आवाज आती थी कि सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आप जरा भारत की तारीख उलट करके तो देखो कि आपने किस तरह से भारत को भारत बनाया था, आपने किस तरह से इस मुल्क के हुस्न को चार चांद लगा दिया था। लेकिन आज यही वो मुल्क है जिस मुल्क में आप इमाम हुसैन के नाम का दम भर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन के नाम का काम नहीं हो रहा है। आप अपने ज़हन फिक्र को बदलो प्यारे, इमाम की जात को बदनाम ना करो। जिन
गुनाहों के खिलाफ इमाम ने जंग की है, उन गुनाहों को तुम करके इमाम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। ये तुम्हारे ज़हन फिक्र का दिवालिया नहीं है तो और क्या है? ये तुम्हारे ज़हन फिक्र में अच्छाई के एहसास का मर जाना नहीं है तो और क्या है? आइए जरा देखिए, सैयद शरीफ की बीवी से उस सुनार की औरत ने कहा, आपके घर का वो अंदाज तो नहीं पाया जा रहा है। फौरन सुनार की बीवी से सैयद शरीफ की बीवी बोल पड़ी, आंखें छलक गई हैं, आंसू बहने लगे। कहा, ये जो चांद सा राज दुलारा तुम देख रही हो, ये उसी करबला की भीख है, ये मेरा बेटा उसी आका की देन है। ये मेरे लख्ते जिगर को जो देख रही हो, मेरी गोद खाली थी, मैंने एक रोज अपने आंचल को करबला की तरफ करके फैला दिया था और अर्ज किया था, ये करबला के ताजदार, गर्दो गुबार का जर्रा हमारे आंचल में भी पड़ जाए, हमारी खाली गोद भी आबाद हो जाए तो उनके दरबार से कोई मांगने वाला वापस नहीं जाता है, किसी भिखारी को लौटाया नहीं जाता है। ये वो दरबार है कि जिस दरबार में अपना और गैर नहीं देखा जाता है, दिल की आवाज देखी जाती है। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैंने करबला के ताजदार को पुकार दिया था तो फातिमा के लाल ने करम फरमाया। ये उनकी नवाजी से, ये उनका करम है जो चांद सा बेटा तुम्हारे सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इमाम के नाम पर उसी चांद जैसे बेटे का सदका लुटाया जा रहा है। हमको सबसे बड़ी खुशी यही है ए सुनारन। तब तक उसने कहा, बहन हमारी भी गोद तो खाली है, मैं भी ताना सहते सहते उगता गई हूं। तबीयत चाहती है कि जिंदगी को अब जिंदगी ना रखी जाए, तबीयत चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी को आग लगा लूं। ताना मैंने बहुत सहा, क्या हमारी भी गोद आबाद हो सकती है, लेकिन मैं कलमा पढ़ने वाली नहीं हूं, मैं गैर मुस्लिमा हूं, क्या हमारी भी फरियाद को वो सुन लेंगे? तो सुनारन को सिर्फ इतना समझाया था शरीफ की बीवी ने कि वो मसीहा हैं और मसीहा मरीज को नहीं देखता है, मर्ज को देखता है। डॉक्टर मरीज को देखते हुए इलाज करेगा तो कभी कभी उस पर तासुब का जोश भी बढ़ जाता है, मरीज को हिलाक भी कर सकता है, मरीज को दगा भी दे सकता है, मरीज को धुतकार भी सकता है। लेकिन नहीं, एक डॉक्टर, एक मसीहा, एक हकीम का पहले मिजाज बन जाता है, मर्ज को देखना है, मरीज को नहीं देखना है। वो मसीहा हैं, वो फातिमा के राज दुलारे हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन के लख्ते जिगर हैं। उनका दरबार हर कसो ना कस सबके लिए खुला हुआ है। जो भी उनके दरबार में भीख मांगने के लिए तैयार हो सबकी झोलियों भर दिया करते हैं। इसलिए कि उनके नाना का करीमाना हाल तो ये था कि जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, आता है गरीबों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा, और खुद भी को दे खुद का है मगफिरत का भाला हो, खुद भी को दे और खुद का है मगते का भला हो। उनके नाना का ये करीमाना हाल रहा है, उनके दरवाजे से कोई भिखारी वापस नहीं जाता है। सुनारन की आंखें भीग गई, उसके आंचल उठ गए, करबला की तरफ रुख किया। ए करबला के महाराजा, ए करबला के ताजदार, ए फातिमा के राज दुलारे, आपके दरवाजे की एक भिखारन नाबकारा मैं भी हूं। मेरी भी झोली में कोई जर्रे का एक ही गर्द गुबार का एक ही टुकड़ा आ जाए। रो रो करके अर्ज किया और अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को अपने आंचल में जज्ब किया। चंद ही महीने के बाद ऐसा लगा कि उसका घर आबाद होने वाला है और ठीक 9 महीने के बाद उस सुनारन के घर एक खूबसूरत चमकती हुई बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची को प्यार और मोहब्बत में उस पे पूरे घर वालों ने लाला कहना शुरू कर दिया। जहां उसका घर खाली था, एक ऐसी बच्ची उसको मिली है जिस बच्ची की बुनियाद पर पूरे घर भर बहुत खुश हैं। बहुत कुछ लुटा दिया उसने अपने घर
घर का। अब उसके भी घर का यह दस्तूर बन गया था, जब मुहर्रम की 10वीं तारीख आती तो खुराफात तो ना वो करता था, लेकिन सैयद शरीफ का माहौल देख करके गरीबों में वो भी कपड़े देता था, फकीरों को वो भी लुटाया करता था। कहता था ये जो मेरी लाला को देख रहे हो ये उसी दर की भीख है, ये जो मेरी लाला को देख रहे हो ये उसी दर के जर्रे का गर्दो गुबार का कोई हिस्सा है। मेरी लाला जो मेरी गोद में आई है, प्यार मोहब्बत में लाला कहते कहते उसको ऐसा प्यार दिया घर वालों ने कि वाकई लाला लाला थी। और जब लाला जवान हुई, शादी की फिक्र हुई, सैयद शरीफ की बीवी से सुनारन ने कहा कि हमारे शौहर एक रिश्ता देख करके आए हैं, आपके सैयद साहब को ले जाकर के दिखाना चाहते हैं, अगर आप कहें तो मैं अपने शौहर से कहूं। चुनांचे उन्होंने इजाजत दे दी। सुनार सैयद साहब को लेकर के गया और रिश्ता देख करके दोनों आए। ठीक रिश्ता था लाला के लिए, एक लड़का था जो अपना कारोबार जानता था, उसकी एक माँ थी। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख तय हो गई। लाला का हुस्न बड़ा मशहूर हो चुका था। उस वक्त का जो जमींदार राजा वहां था, उसका लड़का जब सुना कि हमारे पूरे इलाके में हमारे जितने असामी जितने रियाया हैं उनमें लाला जैसी हसीन कोई लड़की नहीं है, उसने कहा लाला को तो मैं अपने घर लाऊंगा, लाला को महल की रानी बनाकर मैं रखूंगा। चुनांचे अपनी मां से उसने कहा, राजा की औरत ने, उस लड़के की मां ने इत्तला भिजवाई सुनार को कि तुम अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे बेटे से कर दो। वो शर्मो गैरत से गड़ गया। उसने कहा आप रानी हैं, आपका शहजादा है, मैं एक बहुत ही अदना दर्जा का आदमी हूं, मेरी बच्ची का रिश्ता आपके लड़के से मुनासिब नहीं रहेगा। यह कहकर के उसने इनकार कर दिया। लेकिन अब उस रानी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा बेटा इसकी चिरौरी मिनती करने की जरूरत नहीं है, ये जिस दिन अपने लाला को दुल्हन बना करके पालकी में बैठा करके भेजेगा उसी दिन तुम शाहराह पर जाकर के जो जंगल के रास्ते से रास्ता जा रहा है, यहां से निकलने के बाद जरूर उस पर हमला करना और छीन करके जबरदस्ती ला करके महल में रानी बना करके रखना। उसने तैयारी कर दी। लाला की शादी की तारीख आई, बारात आई, उसके रस्म रवाज के मुताबिक शादी के तमाम रस्म तय कर दिए गए, तमाम मरासिम अदा कर दिए गए। लाला को पालकी में दुल्हन बना करके बैठाया गया। लाला को लेकर के चले। राजा के लड़के ने अपने साथियों को लेकर के रास्ते में हमला कर दिया। बाराती जख्मी हुए, सारे लोग भागे। लाला को गिरफ्तार कर लिया और दूल्हा को जख्मी किया, बल्कि तलवार से मार करके उसकी गर्दन को जुदा कर दिया। जब उसकी गर्दन को जुदा कर रहे थे तो लाला चीख रही थी, ए करबला के ताजदार, क्या यही दिन देखने के लिए मैं दुनिया में आई थी? ए करबला के ताजदार, अब हमारी मदद कैसी होगी? ए करबला के ताजदार, इससे भी मुसीबत का वक्त क्या कोई आएगा? उसने अपनी मां को सुना था कि जब मेरी मां को कोई परेशानी आती है तो यही कह करके वो मदद मांगा करती है। चुनांचे लाला ने भी आवाज देनी शुरू की। थोड़ी देर के बाद वो क्या देख रही है कि एक सफेद पोश हसीन चेहरे वाले आए, उनके हाथ में एक तलवार है, तलवार चमक रही है कि दुश्मन सारे लोग भागे, जख्म खा खा करके भागे। वो खड़े तसल्ली दे रहे हैं, बेटी तुम इत्मीनान में हो जाओ। मैं रो रो करके अर्ज करने लगी, ए महाराजा ये कटा हुआ सर है। उन्होंने अपना हाथ लगाया और उस सर को गर्दन से मिला दिया और मेरे शौहर को कहा उठ करके बैठ जाओ। जैसे वो उठ करके बैठे, मेरी निगाहों से वो गायब हो गए। मैंने नहीं देखा, सिर्फ लाला ने हालात के बाद ये इतना ही बताया था। इत्तला मिली कि लाला पर हमला हुआ। गांव के सारे लोग भाग करके आए तो देख रहे हैं कि ये बच्चा बैठा हुआ है, लोग जख्म खाए हुए हैं, कुछ भाग गए हैं। लाला रो रही है। लाला ने रो रो करके सारी दास्तान को बताया। उसके माँ बाप ने कहा, ए लोगों गवाह रहना, करबला के ताजदार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। जिस हुसैन ने मेरी मदद इस मौके पर की है, उसी हुसैन के नाना का दीन में कबूल कर रही हूं, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिला ले लिया, यही तो हुसैन की जीत है। इसीलिए तो किसी आशिक़ रसूल ने कहा कि प्यारे हबीब को पुकार और प्यारे नबी का नाम ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब को पुकार और प्यारे नबी का नाम ले और दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले।
عظمت حسین زندہ باد پائندہ باد۔ السلام علیکم۔